بہترین معاشی پالیسیوں کی وجہ سے استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، پچھلے 10 ماہ میں پاکستان کی کرنسی میں استحکام آیا، معاشی اصلاحات ہمارا ایجنڈا ہے، توانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا، پاکستان سعودی عرب کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہے، ہمیں مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 714 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارچ میں گندم درآمد کے وقت وزارت خوراک شہباز شریف کے پاس تھی۔ ذرائع کا انکشاف، شہباز حکومت کے پہلے 6 ماہ 6,91,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ رانا تنویر کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا اضافی علمدان 3 اپریل کو دیا گیا۔ وزیر اعظم نے گندم درآمد کے معاملے پر سیکرٹری فوڈ محمد آصف کو ہٹا دیا تھا۔ پنجاب حکومت کے منع کرنے کے باوجود وفاق نے 8.5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی۔ 25 مارچ کو سیکرٹری فوڈ پنجاب کی جانب سے وفاق کو لکھا گیا خط بھی سامنے آ گیا۔ خط میں لکھا گیا، اب تک 34.5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہو چکی۔ پنجاب میں کاشت کا رقبہ بڑھنے پر گندم کی پیداوار 2 کروڑ 13 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 42 لاکھ ٹن متوقع ہے۔ امپورٹ جاری رہی تو نہ صرف مارکیٹ میں گندم سرپلس ہوگی بلکہ کسان بھی متاثر ہوگا۔ تو گندم کا ایک بہت بڑے کرائسس ہے۔ شہباز شریف اور یہ لوگ تو ابھی جو سکینڈل ہے اس کو دفنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا کسانوں کا ساتھ دینے کا اعلان، اسد قیصر نے کہا، حکومت گندم سکینڈل کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ظلم کی رات جلد ختم ہونے والی ہے، جبر و ظلم پر اسمبلی فلور پر آواز اٹھاؤں گا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا، 98 ارب روپے کی 6 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم درآمد کی گئی۔ وفاق میں حکومت بننے کے بعد بھی گندم درآمد کا سلسلہ جاری رہا۔ اپریل میں گندم کس کے کہنے پر درآمد کی جاتی رہی؟ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے کسان رل گئے۔ حکومت کے پاس کسانوں کی ریلیف کے لیے کوئی پلان نہیں۔ ہم یہی آپ کو ایکسپلین اور عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس وقت چائے کی پیالی میں ایک طوفان مچا ہوا ہے، ہم نے جو یہ پروکیورمنٹ کرنی تھی یہ پاکستان کے ایکسچیکر کے پیسے سے کرنی تھی، جو ہم نے منع کر دی، پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا، اس سے جو امپورٹ ہوا ہم نے آپ کے خزانے میں کچھ $1 ملین ٹیکس کی صورت میں کما کے آپ کو دے دیے۔ گندم امپورٹ کا معاملہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے، معاملے میں جھول ہے، بحران ہے، نہ کرپشن۔ تحقیقاتی کمیٹی میں طلبی ہوئی تو ضرور جاؤں گا۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سوال یہ ہے میں انٹرویو، کہا گندم درآمد پر پابندی اٹھا کر نجی سیکٹر کو سہولت دی کہ خود بھی کماؤ اور ہمارے لیے بھی کماؤ۔ عالمی سپلائی چین متاثر ہونے پر نجی سیکٹر کو گندم امپورٹ کی اجازت دی گئی۔ ہمارے دور سے پہلے ہی نجی سیکٹر کو گندم درآمد کی اجازت تھی۔ کورونا میں گندم خریداری کے ایسارو زبانی پی ٹی آئی دور حکومت میں جاری ہوئے تاکہ آسانی سے ملک میں گندم آئے اور مارکیٹ میں گیپ نہ آئے۔ کتے کا کھانا باہر سے منگوانے پر اشرافیہ کو اعتراض نہیں، غریب کو سستی روٹی ملنے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ بولے نگراں وزیر اعظم رہا، ڈیپٹی پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ کا عہدہ کیسے لے سکتا ہوں؟ قانون تارڑ صاحب جس نے اس دن ایک اشارہ بھی دیا، قانون میں کوئی امینڈمنٹ لا رہے ہیں، چیف جسٹس ہے اس کے ٹینیور میں اضافے کے حوالے سے اس نے اشارہ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا اگر آپ کسی کا حق ماریں گے اور کسی کو پروموٹ کریں گے، اس کو زیادہ وقت دینے کے لیے، اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔ ججز تقرری کی ممکنہ ترمیم کا مقصد سیاسی ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے، ترمیم کسی کو پروموٹ یا اور کسی کو ادارے سے الگ کرنے کے لیے کی جائے گی۔ ایسی ترمیم اداروں کی تباہی کا باعث بنے گی۔ موجودہ پارلیمنٹ ایسی ترمیم کا اخلاقی، سیاسی و قانونی جواز نہیں رکھتی۔ ایسی کسی بھی قانون سازی کے خلاف ہر سطح پر جد و جہد کریں گے۔ کسانوں کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان، 10 مئی کو ملتان سے تحریک شروع ہوگی۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر نے کہا، گندم درآمد کرنے کا فیصلہ صرف مال بنانے کے لیے کیا گیا۔ ملک میں 44 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود تھی، پھر بھی درآمد کی گئی۔
गंदम की दरामद के लिए $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया गया। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपनी ज़मीन या पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। जिम्मेदारों को फांसी दी जाए। हुकूमत ने जिस रेट पर जो मुकर्रर किया है किसानों से वो गंदम खरीदे, लेकिन वो तो उसे कमतर पर भी नहीं खरीद रही और ना उनको बोरियां और बारदाना दे रही है। हुकूमत ने गंदम खरीदी ना बारदाना दिया, महीनों की मेहनत खुले आसमान तले पड़ी है। फैसलाबाद के किसानों का घंटा घर चौक पर एहतजाजी धरना, जमात इस्लामी भी एहतजाज में शामिल हो गई। 4 रोज तक शाम 4 से 7 बजे तक एहतजाज होगा। किसानों का कहना है हुकूमत ने गंदम का रेट 3,900 रुपए फी मन लगाया, लेकिन खरीदारी नहीं कर रही। 4 रोज तक गंदम खरीदारी का फैसला नहीं किया गया तो वजीर आला हाउस पर एहतजाज होगा। किसानों ने खबरदार किया, हुकूमत ने गंदम न खरीदी तो अगले साल गंदम को तरसेगी। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे खुलने का इम्कान। सऊदी अरब के सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और जाम कमान ने इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द 30 से ज़ायद कंपनियों के 50 सरमायाकारों पर मुश्तमिल है। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लेगा। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तिदाई सेशन आज शुरू होगा। 10 से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स ज़राअत, कानकनी, इंसानी वसाइल, तवानाई और दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। मौजूदा रिफाइनरी, IT, मजहबी सयाहत, टेलीकॉम और दीगर शोबे भी ज़ेरे बहस आएंगे। इस्लामाबाद के बाद कराची से भी हज परवाजें रूट टू मक्का के तहत जाएंगी। प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब का 82 रुकनी वफ्द आज कराची पहुंच रहा है। आज़मीन हज के लिए कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन काउंटर्स होंगे। सऊदी वजारत दाखिला के एहलकार आज़मीन हज की इमिग्रेशन करेंगे। कराची से पहली हज परवाज 9 मई को रवाना होगी। आपने कैटेगोरिकली कहा वजारतें नहीं लेंगे, ये रिविजिट हो सकता है? Anything can happen in politics. Can't rule out things ना। ये फैसला हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कन्वे किया चेयरमैन बिलावल साहब को, जो भी फैसला CEC करेगी फिर वो कन्वे कर दिया जाए। वफाकी काबीना में जाना चाहिए या नहीं, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। PP रहनुमा नैयर बुखारी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात हुई थी। नून लीग का इसरार था पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो। नून लीग हुकूमत चलाए, पॉलिसियां बनाए, PP हिमायत करेगी। PP की जानिब से हुकूमत को खतरा नहीं होगा। जजेस तकर्री पर कोई तजावीज़ आई तो PP ज़रूर देखेगी। आईनी तरमीम फर्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए। चीनी एक्सपोर्ट करनी है या नहीं, वजीर आजम ने जायजा लेने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है मुकामी ज़रूरत पूरी होने की शर्त पर चीनी की बरामद पर गौर किया जाएगा। चीनी की कीमत में इजाफा ना होना यकीनी बनाया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी गई है। MPEs सरकारी नौकरियों के कोटे पर पहरा दें। MKM के अरकान सिंध असम्बली को हिदायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MKM के अरकान असम्बली का इजलास। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल और कराची में अमन अमान का जायजा लिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अरकान सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर नजर रखें ताकि काबिल नौजवानों को हक से महरूम ना किया जा सके। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के मसाइल असम्बली में उठाएं। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर आज क्वेटा पहुंचेंगे। वजीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। आला सतह इजलास में शिरकत मुतवक्के। मुख्तलिफ सियासी और कबायली रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी।
परवेज इलाही अस्पताल मुंतकिल होंगे, अडयाला जेल रहेंगे या घर में नजरबंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज महफूज फैसला सुनाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त मोहम्मद अली और इम्तियाज के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल आपस में दोस्त और मैकेनिक का काम करते थे, दोनों से कोई चीज नहीं छीनी गई। वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। हमारी पुलिस, रेंजर्स, हमारी अफवाज के शोहदा का खून है, जिसकी वजह से इस शहर में अब कुछ न कुछ हालात बेहतर हैं। जो स्ट्रीट क्राइम वगैरह के वाक़यात हैं उस पर भी काबू पा लेंगे। कराची के हालात अब बेहतर हैं, पुलिस और रेंजर्स ने अमन कायम किया। वजीर आला मुराद अली शाह की लियारी में गुफ्तगू, कहा कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है, स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। पुलिस में भर्तियों के सिलसिले को जल्द शुरू किया जाएगा। नौकरियों के सिलसिले में लियारी वालों का ख्याल रखा जा रहा है। लियारी के नौजवान पुलिस, रेंजर्स और अफवाज में जाकर मुल्क की खिदमत करेंगे। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ खारिया में ख्वाजा सराओं का एहतजाज, सदर थाने की ईंट से ईंट बजा दी, पथराव किया, तोड़ फोड़ की। डीपीओ के हुक्म पर इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया एहतजाज नग्गा है नामी ख्वाजा सरा के उकसाने पर हुआ। हिरा नामी ख्वाजा सरा 1 घंटे भी थाने में नहीं रहा, उसने पुलिस से सुलह कर ली थी। पुलिस पर हमला करने वाले ख्वाजा सरा गुजरावाला और सियालकोट के रिहायशी निकले। थाने पर धावा बोलने वाले 25 से 30 ख्वाजा सराओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीपीओ का ख्वाजा सराओं का मेडिकल कराने का हुक्म। गजा में इसराइली जारियत बरकरार, जैतून में घर पर इसराइली बमबारी में वालिदा और बेटी शहीद। तिलकरम में इसराइली फोर्सेस ने 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। नेतन्याहू ने मजलूम फलस्तीनियों की आवाज़ बनने पर अल जजीरा को बंद कर दिया। चैनल को बंद करने के लिए इसराइली काबीना में वोटिंग की गई। अल जजीरा के नशरियाती आलात जब्त करने का हुक्म। इसराइली फौज ने अल जजीरा रिपोर्टर्स और अमले पर 50 से ज़ायद हमले किए, जिसमें अमले और उनके खानदान समेत 53 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमेरिका से यूरोप तक मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अमेरिका के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसराइल के खिलाफ डट गए। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कंपाउंड में लगे मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। तलबा का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में एहतजाज जारी। फ्रांस की मुख्तलिफ जामियात में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में एहतजाज करने वाले कई तलबा गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में गजा मार्च, अवाम की बड़ी तादाद की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, अमरीका और यूरोप के अवाम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। इसराइल को सपोर्ट करने पर अमरीका में तलबा समेत लोग अपनी रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हमारे हुक्मरान फलस्तीन के मामले पर क्यों खामोश हैं? रफा ऑपरेशन हुआ तो उम्मत OIC को माफ नहीं करेगी। मार्च में मारिया बी, मिशी खान समेत शोबिस और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी से ईरानी सफीर की मुलाकात, दौरा ईरान की दावत दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर हुकूमत को बैनुल-अक़वामी दबाव से बाहर आना चाहिए। फ़लस्तीन इशू पर हम ईरान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। जमात इस्लामी पूरी ताकत के साथ फ़लस्तीन इशू और कॉज के साथ खड़ी है। रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा, इस वक्त आलमी राय आम्मा फ़लस्तीन के हक़ में है। लाहौर में पिंक गेम्स इख्तिताम पजीर, वज़ीर आला पंजाब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मरीम नवाज ने कहा, पिंक गेम्स में शरीक खिलाड़ियों में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन निकलेंगे। पिंक गेम्स को पूरे पंजाब में फैलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में लड़कियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है।
सारी मोटरसाइकिलें लड़कियों को चाहिए तो देंगे। वज़ीर आला ने तकरीब के दौरान फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुलाया। कहा, बच्ची ने बताया मेरे पास इतने ही पैसे थे कि फूल ले सकूं। बढ़ते जज्बात से बच्ची की आंखें छलक पड़ी। वज़ीर आला पंजाब ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। खवातीन के लिए बने काउंटर का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने मेट्रो बस पर सफ़र किया और सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। गद्दाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। जीत आपके लिए और हार मेरे लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करें, फतह कदम चूमेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज में ज़ोहराना भी दिया।